হ্যালো এভরিওয়ান, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, অ্যাম আই অডিবল? প্লিজ কেউ একটু আনমিউট করে একটু অ্যান্সার দিও। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। ওকে। সো আজকে যেটা সেশন আছে সেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ ইন্টারভিউ রিলেটেড সেশন। বেসিক্যালি টেকনিক্যাল কিউ অ্যান্ড এ, মক কিউ অ্যান্ড এ, ডু অ্যান্ড ডোন্টস। বেসিক্যালি ইটস রিলেটেড টু ইন্টারভিউ, বিকজ উই অল আর গোয়িং ফর অ্যান ইন্টারভিউ। আমি জানি না তোমাদের এখন কোর্স রিলেটেড কতটা কি করেছো। Hopefully you have completed all the modeling part, modeling, texturing and lighting part, or maybe you are doing the modeling, texturing part. This is an interactive session. Please একটু unmute করে একটু জানিও, নাহলে it will be difficult for me. তো একটু যদি কেউ কারোর কাছে if you have got a modeling, texturing শরীর, please share. চ্যাট বক্সে একটা আমাকে টাইপ একটু লিখে পাঠাও, তাহলে ওটাকে নিয়ে আমি একটু কথা বলতে পারি। রিলেটেড কি কি ফিডব্যাক দিতে পারি, ইটস নট অ্যাবাউট ফিডব্যাক টু ইয়োর শরীর, রাদার হোয়াট টাইপ অফ কোশ্চেন ইউ ক্যান ফেস গোয়িং ফর আ ইন্টারভিউ আর সো। আমি ওই শরীরটার থেকে অ্যাটলিস্ট পয়েন্ট আউট করতে পারবো। তো কারোর যদি শরীর থাকে প্লিজ একটু চ্যাট বক্সে শেয়ার করলে একটু ভালো হয়। এনিওয়ান? এনিওয়ান? অমিত, অঙ্কিতা, দেবাশিস, ইন্দ্রনীল, ঈশানী, রচনা, রনিতা, শ্রেয়া, সুরজিৎ, তুনির? Anyone? If you have got a shoril, please share. That would be helpful to start our session and all. So we can talk about a few things related to your shoril. What type of questions we see? Shoril is a thing means আমরা যখন যাচ্ছি हम लोग जब एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज अवर शोरिल। तो शोरिल अगर ठीक ठाक अगर प्रेजेंट नहीं हो रहा है तो पहले बात तो है कि इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएगा। तो वो तो देखना ही पड़ेगा कि कैसा हम लोग वो शोरील हम वहाँ पे जा रहा है, और ये भी देखना है कि वो शॉर्ट एंड क्रिप्स हो। दैट मीन्स नॉट मोर देन मे बी 1 minute to within 2 minutes you should have that shoril. More than that मीन्स इफ कोई भी अगर वो शोरील देख रहा है तो वो बोर फील करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 between 1 minute to 2 minutes, max to max 2 minutes is still I feel it's a long time. Reduce that time, keep it 1 minute to maybe 1.5 minutes and all, that would do. So किसी के पास भी शोरील है? Anyone? MTL part, I just want that MTL part shoril. শরীরটা দিলে একটু সুবিধা হয়। এনিওয়ান? আমি জানি না তোমাদের এখন কি কতটা কি শরীর করেছো অ্যান্ড অল। সো আই এম গেটিং অন উইথ ইট। সো টেকনিক্যালি if you are preparing a shoril, maybe you have submitted a particular project or so uh, related to MTL part and all, where you have submitted maybe a interior model, an exterior model, profs model, profs with along with that you have also maybe submitted a character model. So when you are creating a showreel, just ये जो दो दो चार ये वर्क, वो शोरील नहीं बनेगा उससे। तो उससे ज़्यादा कुछ शोरील में चाहिए। थैंक यू रोनिता, यू हैव शेयर द शोरील। तो एक बार देख लेते शोरील को, उसके बाद थोड़ा एक एक दो इंटरेक्टिव सेशन करेंगे रोनिता। W. वेल आई एम আচ্ছা আচ্ছা दिख रहा है ना?
হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। Okay. So, Ronita, which there are many works. So, which work you consider as the most as your best work? রনিতা, হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। কোনটা তোমার সব থেকে ভালো লাগছে কাজ তোমার মনে হয়? তোমার কোনটা ভালো লেগেছে সব থেকে বলো? ফার্স্টে গথিক ইন্টেরিয়রটা। একটু একটু লাউড বলবে? It's- স্যার ফার্স্টের গথিক ইন্টেরিয়রটা। মানে দিস ওয়ান যেটা কথা বলছে তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এক্স্যাক্টলি, আমি বাকিদের সাথেও একই সেম জিনিস ভাবে শেয়ার করছি, সেটা হচ্ছে সো ইউ শুড বি পুটিং দ্য বেস্ট ওয়ার্ক ইন ফ্রন্ট অ্যাজ ইফ ইউর শরীর। ভালো ভালো কাজ করেছো, খুব সুন্দর। এবারে স্যার আনরিয়েল এর কাজ দেওয়া যাবে তো? হ্যাঁ, তুমি দিতেই পারো, তুমি তো মেনশন করেছো ওখানে দোজ আর ওয়ান রিয়েল ওয়ার্কস। ঠিক আছে, তা আমি আরেকটা কথা বলবো, ইফ ইউ আর ইউজিং দ্যাট আনরিয়েল ওয়ার্ক অলসো, আনরিয়েল ওয়ার্কের মধ্যে কি তোমার কি এগুলো কি সব শুধু অ্যাসেটস গুলো কি তোমার ক্রিয়েটেড কিছু, নাকি অ্যাসেটস গুলো ডাউনলোডেড? না না, ডাউনলোড করা সব। আর এটা এই যেটা বানিয়েছো সেটা মানে মাউন্টেনের পার্টটা তুমি ওই এর থেকে বানিয়েছো তাই তো, ল্যান্ডস্কেপ মোড থেকে তাই তো, স্কাল্প করে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম হুম। আদারওয়াইজ ওর স্যার ঠিক আছে, মানে তুমি এখানে লিখেছো, ইটস ওকে, দেওয়া যাবে না এরকম কোনো ব্যাপার নেই। তবে আমার মনে হয় না ওই আহ, কাউকে কনফিউজ করাটা ঠিক না। কনফিউজ বলতে গেলে মধ্যিখানের পার্টটা, বিকজ মধ্যিখানের পার্টটা হঠাৎ করে আনরিয়েল চলে এলো, পরে মায়া রইলো, যদি সেটাকে তুমি যদি আর কোনো মানে সেগ্রিগেট করতে পারো, দেখার চেষ্টা করো, ওটাকে যদি সম্ভব হয় করতে পারো, বিকজ আচ্ছা, লাস্টে লাস্টে দেবো ওটা, যেটা আনরিয়েল তুমি এর যেটা তুমি কাজটা। মনে করতে পারো, যদি মনে করো ওরম ভাবে করতে পারো, মানে অ্যাটলিস্ট করতে পারো আর কি, আমার মনে হয়। কারণ মধ্যিখানে আনরিয়েলের ওয়ার্কটা থাকার থেকে আমার মনে হয় মায়ার, মানে মায়া রিলেটেড যে কাজগুলো করেছো, ইটস লাইক তুমি যদি ওটা করে নেওয়ার পরে ফিউ আনরিয়েল ওয়ার্কস বলে তুমি আলাদাভাবে দাও, মানে এটা আমার সাজেশন, বুঝলে তো? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। বুঝতে পেরেছো তো কেন বলছি আমি? তো ইটস লাইক একটা 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 ওয়েতে যাচ্ছে তো, তো আহ, তো সেরম ভাবে হলে মোটামুটি আমার মনে হয় বেটার হবে। ওকে, আর স্যার টাইমিংটা ঠিক আছে? টাইমিং ঠিক আছে, দেখলাম তো, মেবি মোস্ট প্রবাবলি 1 minute 33 seconds অ্যান্ড অল এরকম কিছু দেখছিল। হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ। আছে, ইটস ইটস ওকে, ইটস ওকে, ইটস ওকে, ঠিকঠাক আছে। ঠিক আছে, ইউ ডোন্ট নিড টু, মানে কি বলো, দেখো বেসিক্যালি ইফ ইউ আর কাউকে যদি শরীরটা দেখাচ্ছ, শরীরটা দেখালে তোমার যে কাজটা আছে সেটা তো ওখানে ওখানে যেই রিলেটেড কাজগুলো হচ্ছে, তো সেখানে তুমি পার্টিকুলার তুমি সাবজেক্টিভ হবে যে হোয়াট ইউ নিড, ইফ ইউ আর গোয়িং ফর অ্যান ইন্টারভিউ অলসো ওয়্যার ইউ নিড রিগার্ডিং লাইটিং অ্যান্ড অল, তো তোমাকে না পার্টিকুলারলি সাবজেক্টিভ হতে হবে যে ওই জায়গাটা লাইটিং এর উপর আমি কি বলতে পারবো অ্যান্ড অল। সি মানে তোমার এই যে যেটা গথিক ইন্টেরিয়ারটা স্টাডি করেছো,
ধরো হ্যাঁ স্যার। if you are going for a lighting interview, so maybe যেই জব ইন্টারভিউটা প্রজেক্ট করছে ফার্স্ট জবের ব্যাপারটা বেসিক্যালি জানো যে হোয়াট টাইপ অফ জব দে আর অফারিং অ্যান্ড হোয়াট ইউ হ্যাভ অ্যাপ্লাইড ফর মিনস আমি ডেসক্রিপশনটা বোঝাতে চাইছি। তো এখানে না মডেলিং এর থেকেও মেন যে পার্টটাকে রোল প্লেটা হয়ে থাকে সেখানে হচ্ছে লাইটিং এর পার্টটা। তো সেখানে না তোমাকে ইউ হ্যাভ টু প্রিপেয়ার ইউর সেলফ রিগার্ডিং পুরো যে শরীরটা রয়েছে সেটাকে যেন প্রপারলি প্রিপারেশনটা নিয়ে রাখো। কারণ এখানে যখনই মডেলিং টেক্সচারিং এর ব্যাপার, মডেলিং টেক্সচারিং এর শরীর আসছে, মডেলিং টেক্সচারিং মিনস তুমি পুরোটা আসতে পারো, কিন্তু লাইটিং এর যখনই আসছে না, লাইটিং এর পার্টটা তোমাকে স্পেসিফিক হতে হবে যে কোন কোন লাইটিং এর কি কাজ হতে পারে, তুমি এখানে কি লাইটিং এর ব্রেকডাউন করেছো। তো এবার ধরো লাইটিং হলো না, ইটস লাইক ইফ ইউ আর গোয়িং ফর আ মডেলিং টেক্সচারিং ইন্টারভিউ দেন ফাইন, কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে মডেলিং টেক্সচারিং ইন্টারভিউতে মেন টপিক আমি আই এম নট আস্কিং ইউ টু ক্রিয়েট ডিফারেন্ট শরীর, আই এম জাস্ট আস্কিং ইউ টু সেগ্রিগেটিভ শরীর, the Maya works as well as the ইয়ে those Unreal related works, আমি দুটোকে জাস্ট একটু সেপারেট করতে বললাম। দিস শরীর ইজ ফাইন, there is no problem related, but if you take it's a suggestion just যে এইরকম কিছু করতে পারো। ঠিক আছে স্যার। তুমি রিলেটেড কোশ্চেন কি ফেস করতে পারো ওখানে, তোমার যে কাজটা করেছো অ্যান্ড অল, যেই লাস্টের দিকে মডেলিং পার্ট অ্যান্ড অল, ইফ ইউ আর গোয়িং ফর অ্যান মডেলিং পার্ট ইন্টারভিউ, সো মডেলিং পার্ট মিনস হিয়ার ইউ আর গোয়িং টু গেট দিস মডেলিং পার্ট ইন্টারভিউ। সো মডেলিং পার্টে যেটা পার্ট মেন থিং যেটা আমাদের আসে, দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ নিড টু এক্সপ্লেন দ্য টোপোলজি। Okay, when talking about the modeling part you need to explain the topology. So it is not important when going for a lighting work, that topology, but it is important in terms of topology. So topology তে যখন আমি এটা দেখানো চাইছি, তুমি এটা দেখিয়েছো ভালো, মডেলিং পার্টের তুমি করেছো খুব ভালো, মডেলিং পার্টটাকে না আরো একটু এক্সপ্লেন, মানে আমি বিশেষ করে বলছি টোপোলজি পার্টটাকে যদি এই জায়গাটায় পুরো ঘুরিয়ে দেখাচ্ছ, তার থেকে একটা দুটো ইমেজ যখন দিয়ে দিলে, যখন এটাকে ঘোরাচ্ছ তখন যদি এটার মধ্যে কোনো ট্রানজিশন নিয়ে আসতে পারো যেখানে কোনো ওই টোপোলজির পার্টটাকে ঘুরিয়ে দেখাতে পারছে। কারণ বিকজ সি when we are showing the topology, this is from the front part, we going to see the back part also. আমি কি বলছি বোঝা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। So if possible, I am not asking, আমি আবারও বললাম the শরীর is okay, but it's just a suggestion, যদি তুমি এখান থেকে একটা পার্ট করতে পারতে, এখান থেকে এই পার্টটাকে একটু আফটার এফেক্টসে গিয়ে এডিট করলে, ফ্রম হিয়ার ইউ স্টার্ট দ্য ওয়্যারফ্রেম মোড, মিনস ইটস আ জাস্ট গিভ আ প্রপার ট্রানজিশন, ফ্রম দেয়ার ইট ইজ টেকিং দ্য ইটস আ ওয়্যারফ্রেম মোড। সি, তো দ্যাটস হাউ উই ক্যান এক্সপ্লেন দ্য, আমি এখান থেকে তো ফ্রন্ট পার্টটা দেখাচ্ছিলাম, প্লাস আমাদের রিয়ার পার্টটাও ইট ইজ ভিজিবল, দ্য ওয়্যারফ্রেম ইজ ভিজিবল। আমি বলতে পারলাম কি বলতে চাইছি? হ্যাঁ স্যার, ঠিক So আছে। make sure it's not only about Ronita, others also please check, আমি যেরকম ভাবে বললাম, যদি if you can তোমাদের যে যখন এই কাজটা করছো, if you can explain, it will be better. Okay, তো first and foremost thing when you are preparing for going for an interview, first you know the job role. It's okay Ronita. So first and foremost thing, when you are going for an interview, যেটা বললাম, that is you have to understand your job role, what job you are going for. Maybe it's a modeling texturing job, or maybe it's a lighting job, maybe it's a texturing job also, not দুটোকে যদি একসাথে না করলাম, জাস্ট টেক্সচারিং জবও হতে পারে। সো ইউ নিড টু, তোমাকে জব রোলের ব্যাপারটা ভালো করে জানতে হবে। অ্যানাদার থিং ইজ when you are going for an interview, তোমার যদি ধরো इंटरव्यूতে कोई भी कॉल तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम्हारे नाम तो प्लेसमेंट टीम के पास है, प्लेसमेंट टीम का मैम ने तुमको कॉल किया या मैसेज किया, ग्रुप में कोई मैसेज डाल दिया कि तुम्हारा शोरील ऐसा सिलेक्ट हुआ है एनिमेशन के सॉरी मॉडलिंग टेक्सचरिंग जॉब के लिए। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू? एनीवन? Hello, it's an interactive session, you should at least interact. Many people, Ankita, Debashish, Indronil, Ishani, I don't know whether you have got a mic or so. If you have got a mic, please response.
ये एक एनिमेशन का यही प्रॉब्लम है। अगर एनिमेशन का इंटरव्यू पे हम लोग जाएंगे या मॉडलिंग टेस्टरिंग कोई भी जॉब के लिए इंटरव्यू पे जाएंगे, ऐसे चुप रहेंगे तो वो जॉब हम लोगों को नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत बार होता है कि वी हैव क्रॉस द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड सभी यहाँ पे सभी को आता है टेक्निकल काम, क्योंकि माया पे ही काम किया जाता है। माया जो भी सॉफ्टवेयर है हम लोगों को टेक्निकल सब कुछ पता है, लेकिन एक ही जगह पे जाके हम लोग अटक जा रहा है, वो क्या है ना, नॉन टेक्निकल पार्ट। तो दैट नॉन टेक्निकल पार्ट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट थिंग। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, देर इज अ technical part which is the technical part is being taken by the technical person also, and the non-technical part means the HR is mainly responsible in taking that non technical part. So where you have to face different types of questions that is maybe related to your subject, maybe not mostly subject related, but there are some things like somebody may ask you, those are very common questions like strength and weaknesses, what you are going to say. So those are the things. But first and foremost thing, when you are going for an interview, or maybe ऐसा कुछ कॉल आया है, मैम ने इन्फॉर्म किया, मैम या सर में इन्फॉर्म किया ग्रुप पे कि कुछ ना एक नाम सिलेक्ट हुआ है, तुम्हारा नाम सिलेक्ट हुआ है, तो पहला जो काम करना है कि check the company name where you have applied for, where you have got, where your schedule have got selected. Go to Google, search about the company, what type of projects they do, what type of work they are doing. Please go through it, because when you are going for an interview, there might be a question related to that. जो वहाँ पे तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है वो पूछ सकता है कि तुम हमारे कंपनी के बारे में क्या जानते हो। ऐसा है, होता नहीं है कि सभी कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन गूगल में तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन तो रहता है। उसका वेबसाइट में चेक करो, अबाउट अस में बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाएगा। जितना तक इन्फॉर्मेशन हो सकता है गैदर करो। मीन्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, वी शुड एटलीस्ट गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। एंड ऑफ कोर्स अनदर थिंग, दैट इज व्हाट इज द जॉब रोल। वो जॉब रोल के बारे में भी हम लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव हम लोग को होना है। उसके साथ साथ है, इसके साथ भी एक आएगा, वो है क्या, हम लोग फिर से बोल रहे थे, पहले ही बोल चुके, वो है पोर्टफोलियो एंड प्रेजेंटेशन। इसके बाद आता है इंटरव्यू के बारे में हम लोग जाएंगे। लेकिन एक इंटरव्यू पे जाएंगे तो प्रोफेशनल हम लोगों को बिहेवियर मेंटेन करना है। तो प्रोफेशनल बिहेवियर हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मीन्स very simple, that is we should be we should be punctual enough. Means at least 15 to 20 minutes at least you should go before that. I would say at least half an hour पहले तो वहाँ पे जाना है, जहाँ पे भी इंटरव्यू है तो वहाँ पे जाना है, पहले सेटल डाउन होना है। क्योंकि अगर हम लोग सेटल डाउन नहीं हुए तो वहाँ पे जाके इंटरव्यू में हम लोग का उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। सो both going for a technical round or non-technical round, it may be this also happen that it is a work from home. that means कोई भी रिमोट काम पे आ रहा है तो वहाँ पे मशीन पे सामने तुमको बैठना पड़ेगा। आई होप यू हैव ऑल गॉट मशीन्स एंड ऑल। इफ यू आर नॉट एबल, यहाँ पे अगर मशीन ना हो तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मशीन चाहिए वो इंटरव्यू के लिए। तो वहाँ पे जाके अगर वहाँ पे भी प्रोफेशनल बिहेवियर मेंटेन करना है, पहले जाओ वहाँ पे रहो, उसके साथ जो भी आंसर है वो प्रॉपरली आंसर करो। उसके साथ एक ड्रेस के बारे में भी ये ठीक ठाक है। ऐसा है कि लाइट कलर का कुछ शर्ट पहन के जाओ, डार्क कलर का पैंट हो, ये यही है। अगर टॉकिंग अबाउट मेंस, फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा है कि फॉर्मल एक आउटफिट में जाना है। तो वही अगर इंटरव्यू पे बैठ भी रहे तो हम लोग अगर रिमोट पे भी इंटरव्यू दे रहे हैं तो वो प्रॉपरली ड्रेस करके ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कैजुअल वेयर में बैठ गए, घर पे है कैजुअल वेयर में बैठ गए, ऐसा नहीं करना है। और रिगार्डिंग कम्युनिकेशन, प्लीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज लिसन केयरफुली बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चंस।
अगर कोई भी तुम्हारे तरफ क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पहले सुन लो। ऐसा हो सकता है कि एक जन नहीं, एक से दो तीन जन ऐसे वो इंटरव्यू बोर्ड पे बैठे हैं, दो तीन जन इंटरव्यू दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तीन जन नहीं होता है, लेकिन सोच सकते हो कि दो जन बैठे हैं सामने, तो उसके साथ साथ कैसे बात करेंगे। हो सकता है कि तुमको वो दोनों क्वेश्चन दो तरफ से आ गया है, तो यू हैव टू पोलाइटली हियर दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर बोथ द क्वेश्चन। एक एक करके आंसर करो, पहले एक जन को आंसर करो, उसके बाद और एक जन को आंसर करना है। ऐसा होता है, कभी कभार होता है, क्योंकि दो पर्सन वहां पे क्यों बैठे हैं, हो सकता है कि एक नॉन टेक्निकल पर्सन है और एक टेक्निकल पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसे भी हो सकता है कि इंटरव्यू दो राउंड पे आ गया, पहले टेक्निकल राउंड हो गया, उसके बाद नॉन टेक्निकल राउंड पे हो गया। अगर दोनों एक साथ भी हुए तो तब जाके वो प्रॉब्लम हो सकता है। मीन्स नॉट प्रॉब्लम, यू हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। उसके साथ साथ ऐसा है, प्रॉपरली यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करना है, और वो भी शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंट्रोड्यूस करने के जगह पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो हम लोग जाके वहाँ पे हम यहाँ पे रहते वो सब हम लोग बोलने के लिए चले गए। ऐसा नहीं है, काम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, वो कैसे हम लोग वो सिचुएशन पाया है, वो एक्सप्लेन करने का ज़रूरत है। बाकी सब कुछ कब है, हम कहाँ रहते हैं, ये सब तो हम लोगों का जो सीवी है, वो सीवी में ही ऑलरेडी इट इज़ प्रेजेंट आउट देयर। टेक्निकल प्रिपरेशन मीन्स टेक्निकल प्रिपरेशंस को भी हम लोगों को देखना है कि अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो वो टेक्निकल प्रिपरेशंस भी हम लोगों को एक एक दो क्वेश्चंस के लिए हम लोग सेटअप करके जाएंगे। पहले ही बोल चुके कि अगर मॉडलिंग टेक्सचरिंग का जॉब में हम लोग अगर कुछ कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो मॉडलिंग टेक्सचरिंग का मेन थिंग अबाउट मॉडलिंग टेक्सचरिंग इज दैट वी शुड मेंटेनिंग द प्रॉपर कार्ट फ्लो। तो कार्ट फ्लो मीन्स दैट इज टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन बहुत टाइम आता है हम लोगों के सामने कि कौन सा मॉडल या कौन सा, हमने जैसे पूछे रोनिता को कि विच वन यू फेवर एज योर बेस्ट मॉडल और बेस्ट वर्क, तो उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन आता है, मीन्स व्हाट व्हाट चैलेंजेस यू फेस्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ऑल्सो, और पर्टिकुलर काम के लिए क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए। वही जो हम लोग रोनिता का वो गॉथिक एक देखे, इंटीरियर देखे, उसके अंदर ही एक वही वही उसके बारे में ये क्वेश्चन आ सकता है कि रोनिता को हम लोग पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा है कि हम लोग तुम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम या कुछ फेस किए हो ये बनाने, ये क्रिएट करने के टाइम पे। तो ये सब ना एक 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 रेडी रखना है पहले से ही। हम लोगों का पास जो भी शोरील हमारे पास है, वो शोरील को हम लोगों को देखना है कि वी हैव गॉट ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड आंसर रेडी फॉर एवरीथिंग, मीन्स एवरी वर्क वी आर हैविंग इन दैट शोरील। मीन्स मेरा कुछ काम वहाँ पे अगर है तो हम लोग वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके। हो सकता है कि रेफरेंस भी तुम कैसा कुछ रेफरेंस लिए हो, ये भी इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं, तो बोल देना। ऐसा नहीं है कि रेफरेंस तो लेना है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ मन में हम लोग क्रिएट कर दिए। हाँ, ये क्रिएटिविटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रेफरेंस भी लिए तो रेफरेंस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देना कि अगर कैसे कुछ रेफरेंस हम लोग यहाँ पे कलेक्ट किए थे। और ऐसा नहीं है कुछ हम लोग अगर वहाँ पे क्रिएट किए, पूरा कॉपीड वर्क इट शुडंट बी देयर इन योर शोरील। अगर पूरा कॉपीड वर्क मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट रेफरेंस लिए है, रेफरेंस पूरा कॉपी कर दिया, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा कुछ काम हमारे शोरील पे है, प्लीज रिमूव दैट। इट मे बी दैट the person who is taking your interview, he or she has seen that work also in somebody's other profile also, that time it will be problematic for you। मीन्स वो समझ जाएगा कि ये तो एक कॉपीड वर्क है। सो इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट टाइप ऑफ मॉडल इन योर शोरील और सो, either remove it or modify it
एटलीस्ट मॉडिफाई, ऐसा कुछ मॉडिफाई करो कि वो दिख ना पाए कि जो जो पहला वाला मॉडल था। तो थोड़ा सा तो मॉडिफाई करना है, और मॉडिफाई उतना तक तो करना है जो दोनों में डिफरेंशिएट कर सके। सो कमिंग अबाउट टू एनिमेशन डू एंड डोंट्स, देखो प्रॉब्लमेटिक डोंट्स पे बहुत सारा हम लोग मिस्टेक्स, ये तो एक मिस्टेक के बारे में ही बोल रहे थे कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लमेटिक अगर हो सकता है कि पोर्टफोलियो में मिस्टेक्स का कैसे होता है। पहला वाला प्रॉब्लम तो एक्सप्लेन कर ही दिया कि डोंट ओवरलोड योर पोर्टफोलियो विथ टू मेनी प्रोजेक्ट्स। मीन्स यहाँ पे भी रोनिता के प्रोजेक्ट में थोड़ा सा देखे, इट्स नॉट अबाउट ओवरलोडिंग, बट सीन आई वुड रेदर सजेस्ट, पहले ही बोल रहे हैं रोनिता शेड्यूल ठीक ठाक है, इट्स जस्ट ए फ्यू सजेशंस। मीन्स हम लोग एक ही तरह का काम ओवरलोड नहीं करेंगे। हो सकता है वो पहला वाला इंटीरियर मेरे को बहुत अच्छा लगा, वो उसके एक्सटीरियर भी अच्छा है, लेकिन अगर जब हम लोग उसके साथ साथ the moment we are putting an unreal work after that, it will downgrade the Maya work for sure, because unreal का जो लाइटिंग है, सब लाइटिंग वगैरह है, वो रेंडरिंग वगैरह है, वो तो माया से तो बेहतर है ही, ये तो हम लोग सभी को पता है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, एक ही तरह अगर काम है तो वो सोच सकता हो कि एक एक अलग करके दो, तो एक एक साथ नहीं आए। तो मेरे को वही बेहतर बेहतर लगता है कि अनरियल का जब जब वर्क है तो वो उसको थोड़ा सा पीछे लेकर जाओ, वो बेहतर होगा। एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, एक्सटीरियर इंटीरियर बोथ अनरियल पे किए हो, वो बाद में डाल दो। ओवरलोड मीन्स हम लोगों का जितना भी हम लोग काम किए वो सब हम उसके अंदर डाल रहे हैं, कहाँ पे ना, सोइल पे अंदर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोगों को सिलेक्टिव होना है कि हमारा बेस्ट वर्क क्या है, वही बेस्ट वर्क को हम लोग वहाँ पे जाके शेड्यूल में डालेंगे। और उसके साथ साथ भी उसमें भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा वो जो बेस्ट वर्क हमने सिलेक्ट किए, मे बी 8-10 या वर्क सिलेक्ट किए, हम लोग को वहाँ पे रैंक करना पड़ेगा। मीन्स हम लोग मीन्स खुद को रैंक करना पड़ेगा कि कौन सा वर्क वो 10 काम या 8 काम में भी बेहतर है, मीन्स बेस्ट है, वो पहला वाला रहेगा। मे बी यू हैव डन रोनिता, बट स्टिल एक्सप्लेनिंग इट इज फॉर अदर्स। रोनिता के लिए एक ही है कि हम लोग जैसे बोले कि हो सकता है कि अनरियल वर्क बोल के एक अलग अलग सा सेगमेंट करके पीछे वाले डाल दो, तो बेहतर बीच में ना आए। मेरा सजेशन है। इंटरव्यू कॉन्टेक्ट के टाइम पे प्लीज अवॉइड गिविंग वन वर्ड आंसर, एंड अनदर थिंग इज ट्राई टू, अगर कोई भी फीडबैक मिले ना, कोई भी हो सकता है कि कुछ काम के बारे में, और फीडबैक इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। फीडबैक को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे जैसा है। हम लोग ऐसा है कि कोई भी इंटरव्यू के साथ कोई भी आर्ग्यू पे मत जाना कि रिगार्डिंग, मीन्स आर्ग्यू मीन्स आई एम नॉट, ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है कि उसके साथ झगड़ा करो। आर्ग्यू मीन्स हम लोग तो थोड़ा बात बात में बोल ही देते हैं कि सर आप तो ये बोल रहे हैं, हम ये ऐसा करके, ज़रूरत ही नहीं है कोई। अगर कुछ भी बोल रहे हैं तो पहले सुन लो कि क्या बोल रहे हैं, और मे बी इट्स हीज और हार्ड पर्सपेक्टिव, सो सुनने में तो कुछ गलती नहीं है। तो थोड़ा सा सुन लो कि अगर हो सकता है कि वो तुम्हारे जो शोडील है, वो जो काम है उसमें थोड़ा सा कुछ एडेड बेनिफिट आ जाए, वो थोड़ा रेक्टिफाई करने में, तो वो तो तब तो नहीं कर रहे ना, और ये बाद में करोगे, तो तब जाके बस सुन लो। उसके साथ साथ अगर टेक्निकल एरर में बात करेंगे, तो टेक्निकल कुछ एरर है कि टेक्निकल एरर देखो ऐसा है कि सामने तो बहुत कुछ ऐसा नहीं होता है, फिर भी अगर टेक्निकल एरर मीन्स अगर क्वेश्चन कुछ हम लोगों के पास आता है, शॉर्टकट के बारे में पूछ भी सकते हैं या नहीं भी पूछ सकते। शॉर्टकट पे बारे में ज़्यादा पूछते नहीं है, फिर भी अगर कोई भी मॉडलिंग का अगर ब्रेकडाउन के बारे में, अगर कैसे ब्रेकडाउन करके ये क्रिएट किए हो वो अगर पूछे, तो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर देना है। ऐसा है कि कोई भी अगर काम हम लोग पास टेक्निकल अगर कुछ काम हमारे पास है, हमारे पास वो पूरा स्टोरी रहना है कि कैसे हम लोग किए क्रिएट किए। और एक साथ ये भी आता है
एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि सोच लो कि हमारे पास एक काम है, ये गोथिक ये जो रोनिता ने पहले हम लोगों को दिखाया, वो इंटीरियर मॉडल हमारे पास है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये गॉथिक जो चार्च वाला जो मॉडल तुमने बनाया है, ये कितना टाइम लिया है बनाने में। दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मीन्स हम लोग स्टूडेंट के रहने के टाइम पे एक एक मॉडल या एक इंटीरियर बहुत टाइम लेके बनाते हैं। तो वो हम लोग जब छोड़िल के टाइम पे आ गया ना, तो हम लोग थोड़ा सा तो एक्सपर्ट हो गए कि हम लोग वो बना सकते या उससे बेहतर बना सकते। तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा हम लोगों को ऐसा ध्यान में रखना है कि अगर जो मॉडल हमने बनाया है ये कितना टाइम ले सकता है। मीन्स एजम्पशन, इट्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम, rather assuming that this much time it can take to complete a particular model also। मीन्स उस जैसा कुछ मॉडल बनाने या टेक्सचर करने उसके साथ साथ लाइटिंग करके रेंडर करके वहाँ पे पेश करने के टाइम पे कितना टाइम लगता है, वो बस हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो ये बात याद रखना कि कोई भी मॉडल तुमने वहाँ पे या मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग जो भी हम लोग टाइम वो क्रिएट किए हो, रेंडरिंग पार्ट को छोड़ दो। हम ऐसा नहीं है बोल रहे कि तुम बोल रहे कि मशीन सर मेरा थोड़ा सा मशीन का इशू है तो रेंडरिंग का टाइम ले आए, वो बात छोड़ के आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जैक्ट टाइम टू क्रिएट दैट मॉडल ऑल्सो। सो मेक श्योर यू हैव गॉट दैट आंसर। एक फ्रेम आंसर, एक अगर तुम वहाँ पे जो सीक्वेंस रेंडर निकाले हो वो छोड़ के अगर एक फ्रेम को रेंडर करने को गए तो वो उससे तो पता चल जाएगा ना कि पूरा सीन थोड़ा सा मेरा रेडी हो गया। तो हम वही बोल रहे हैं कि ये उतना तक सोच लो कि वो कितना टाइम कम समय में तुम वो क्रिएट कर सकते हो। और पहले जब जा रहे हो पहला ध्यान देना है क्वालिटी में, काम का क्वालिटी में। क्वालिटी अगर ठीक ठाक हो तो क्वांटिटी तो आ ही जाएगा। प्रोफेशनल मीन्स प्रोफेशनल थोड़ा सा मिस्टेक हम लोगों को वहाँ पे होता है। सो तुम्हारे से अगर कोई भी ना पूछे तो तुम सैलरी के बारे में मत पूछना। Most of the times it is mentioned over there the salary package they are offering, so make sure you don't ask about the salary they are offering। so बहुत सारा कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि कोई भी इंटरव्यू तुम खुद जाके दे रहे हो। लिंक्डइन में फॉर्म फिल लिंक्डइन में एक प्रोफाइल बनाओ, शायद बनाया हो, अगर नहीं बनाए हो तो फिलहाल बना लो। वहाँ पे भी बहुत सारा कुछ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, आते हैं, देखो वहाँ पे लाइक करके रखो, वो बहुत सारा कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी अगर जॉब के लिए जा रहे हो तो पहला ना जैसे बोले अगर वहाँ पे इंटरव्यू के लिए तुम वहाँ पे सिलेक्टेड हुए तो पहला जो प्रोसेस हमने पहले से बोल चुके वो प्रोसेस को फॉलो करना है। ओके, सो जैसे बोले उसके साथ साथ अगर कोई भी ग्रुप प्रोजेक्ट में हम लोग काम किए, हो सकता है कि एक शॉर्ट फिल्म पे हम लोग काम किए, वहां पे तुम्हारा रोल स्पेसिफिक होना है। हो सकता है कि मॉडलिंग में छोटा सा काम किए, प्लीज इफ यू आर यूजिंग इट, और कोई भी अगर जगह पे तुम लोग वहां पे डाल रहे हो, प्लीज मेक श्योर यू आर पिन पॉइंट राइट। मीन्स तुमको वो उसके बारे में पूछ सकते हैं कि फिलहाल तुम लोग मॉडलिंग टेक्सचरिंग टाइम पे हो। सोचो कि एक एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म में तुम एक बीजी क्रिएट किए हो, तो वो अगर बीजी में अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ बोल चुके कि हम लोग ये यहाँ पे पूरा काम किए, मीन्स हम ऐसे ही बोल रहे हैं कि वहाँ पे अगर मॉडलिंग का काम किए हो प्लीज बी सब्जेक्टिव एंड टेल दैट व्हाट मॉडल यू हैव क्रिएट। बिकॉज वहाँ पे अगर हो सकता है कि एनिमेशन का कुछ काम है, तुम यहाँ तक एनिमेशन के बारे में एनिमेशन में उतना इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो प्लीज मेंशन कर देना कि अगर क्या जॉब रोल या क्या तुम्हारा वहाँ पे एफर्ट था। तो प्लीज बी सब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक अबाउट दैट। और देखो टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जो भी है हम लोग को बारे बारे में थोड़ा सा तो हम लोग पता चल गया। और अगर एचआर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास आता है तो वो एचआर रिलेटेड पार्ट में क्वेश्चन आता है, मीन्स वो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हम जैसे बोल रहे थे
तो वहाँ पे ना एब्रप्टली आंसर ऐसा कुछ देना नहीं है कि जहाँ पे हम लोग अम, हमारे नाम एड्रेस वो बताने में चले गए। वो उसमें थोड़ा सा स्पेसिफिक होना है कि कहाँ पे हम लोग आए। तो अगर सोच सोच रहे हो कि एनिमेशन का भी स्टूडेंट हो या जो भी मॉडलिंग टेस्टरिंग का जो भी स्टूडेंट हो, तो प्लीज मेक श्योर बहुत सारा कुछ आंसर तुमको गूगल में मिल जाएगा। चैट जीपीटी में डालो, चैट जीपीटी में बहुत सारा कुछ आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेक श्योर यू आर राइट। मीन्स वो अगर पहले से प्रिपेयर करके जाओ, वहां पे जाके अगर कुछ देखो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। सो मेक श्योर यू आर प्रिपेयर। तो वहां पे भी क्या डालना है, वहां पे बेसिकली डालना क्या है, वहां पे तुमको दिखाना है कि तुम्हारा बेसिकली इंटरेस्टेड हो कोई भी कैरेक्टर मॉडलिंग, या अगर एनिमेशन पे हो तो उसमें विजुअल स्टोरी टेलिंग या कैरेक्टर एनिमेशन पे वहाँ पे स्पेसिफिक होना है। वो भी वही बोलना है कि हम लोग एक एनिमेशन का या मॉडलिंग का स्टूडेंट है। मेरा ऐसा है कि आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन animation or maybe modeling, texturing, lighting. I have experience in creating animation exercises या modeling, texturing, lighting scenes or shots. तो वो भी ऐसा है कि हम लोग चाहते हैं कि वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से हम लोग वही क्रिएट किए। एंड मैंने वी थ्राइव फॉर क्रिएटिंग सच, आई थ्राइव फॉर क्रिएटिंग सच मॉडल्स और समथिंग लाइक दैट। तो ये थोड़ा सा ना एक्सप्लेन बेहतर होगा। उसके साथ साथ अगर ऐसा कुछ एक्सप्लेन करने को गए कि सोच लो कि हो सकता है कि तू ड्यूरिंग माय कोर्स आई वर्कड ऑन क्रिएटिंग 3D एसेट्स, वो भी एक्सप्लेन कर सकते हो। वो कहाँ पे अगर काम कर रहे हो वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो कि अबाउट योर सेल्फ मीन्स तुम्हारा हिस्ट्री नहीं वहाँ पे पूछ रहे, और हिस्ट्री पहले से ही बोल रहे कि हिस्ट्री वहाँ पे है। इसके साथ साथ और भी एक क्वेश्चन आता है कि विच एरियाज डू प्रेफर। मीन्स वहाँ पे हो सकता है कि मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग का तो तीनों का जॉब आया है। तो हो ही सकता है कि एक सब्जेक्ट में तुमको अच्छा लगता है, क्या है वो मॉडलिंग भी हो सकता है, मे बी हो सकता है। तो वहाँ पे बोल देना कि आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन 3D मॉडलिंग पार्ट। थोड़ा सा डिप्लोमेट भी होना है, थोड़ा सा वहाँ भी बोल देना है कि बट आई ऑल्सो एंजॉय टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग बिकॉज दे ब्रिंग। बिकॉज अगर टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग ना आए तो मॉडल का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो उसको साथ साथ उसको थोड़ा सा ऐड कर देना है कि आई ऑल्सो एंजॉय टेक्सचरिंग एंड लाइटिंग बिकॉज दे ब्रिंग मॉडल टू इट्स फाइनल क्वालिटी और फाइनल विजुअल क्वालिटी, ऐसा कुछ बोल देना है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा डिप्लोमेट भी हो। मीन्स इंटरव्यूअर को भी समझ में आ जाएगा तुमको कि वही सब्जेक्ट मॉडलिंग तुमको अच्छा लगता है, और लाइटिंग, टेक्सचरिंग वो भी तुम वो काम के लिए रेडी हो। मीन्स ही और शी विल अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा अगर डिप्लोमेटिक आंसर यहाँ पे डाल देना है। और जब ये डिप्लोमेटिक आंसर के बारे में जब बोल रहे हैं तो वहाँ पे आता है स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में। तो जब शुरू किए थे तब एक बार बोल रहे थे, तो स्ट्रेंथ तो बहुत सारा कुछ है हमारे पास। वीकनेस के टाइम पे स्ट्रेंथ मीन्स वहाँ पे बोल देना वो कुछ क्रिएटिविटी, प्रेजेंस, टीम कोलैबोरेशन। रेदर टीम कोलैबोरेशन को याद रखना, ये टीम कोलैबोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे काम करने के लिए जा रहे हैं वो एक टीम प्रोजेक्ट होगा। मीन्स वी आर वर्किंग इन a production pipeline where there are pre-production stage, production stage and post-production stage. If you are not working as a team, the whole effort will be in vain. So it's a team project. So that's why I am telling you, if you are mentioning your strength, make sure टीम ओरिएंटेशन पे बारे में बोलना। और एक बात स्ट्रेंथ के बारे में तुम बोल सकते हो। स्ट्रेंथ के बारे में क्या है ना, अटेंशन टू डिटेल्स। दिस विल हेल्प यू इन द लेटर हाफ ऑफ द थिंग। मीन्स अगर कोई भी तुमसे स्ट्रेंथ पूछ रहे तो वो हो सकता है कि तुमको वो पूछे कि तुम्हारे वीकनेस के बारे में ही वो पूछे। तो वही एक वीकनेस तुम्हारा काम पे आ जाएगा। दैट मीन्स अगर कोई भी अगर वीकनेस के बारे में अगर पूछ रहे तो वही बोल देना कि थोड़ा सा डिटेल ओरिएंटेड है।
और डिटेल ओरिएंटेड के बारे में अगर जाओगे तो देखो, पहला वाला है कि डिटेल ओरिएंटेड हो, तो डिटेल ओरिएंटेड के बारे में अगर जाओगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम वो थोड़ा सा प्रैक्टिस में है, तो वो थोड़ा सा हम ऐसा है कि हम लोग उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स अवॉइड मीन्स आई एम प्रैक्टिकली वो हम ओवरलैप वो उसको ओवरकम कर रहे हैं। तो यही है। तो ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हुआ। मीन्स अगर कोई भी हम लोग अगर पूछने को गए तो ये थोड़ा सा मीन्स समटाइम आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम पॉलिशिंग शॉट्स, आई एम लर्निंग टू बैलेंस क्वालिटी विद डेडलाइंस, डिटेल ओरिएंटेड। मीन्स एक काम तो वहाँ पे पहले से ही स्ट्रेंथ पे मेंशन कर दिए थे कि अटेंशन टू डिटेल्स। और हाँ, जब वीकनेस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं तो क्या है, समटाइम्स आई स्पेंड एक्स्ट्रा टाइम पॉलिशिंग शॉट्स। मीन्स हम अगर एक शॉट को पॉलिश करने के टाइम पे एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वही हम लोग क्वालिटी के बारे में सोच के कर रहे थे। और फिलहाल हम कोशिश कर रहे सीखने के लिए कि डेडलाइन के कैसे मैच कर सकते हैं। तो वही एक वीकनेस रेदर तुम्हारा एक पॉजिटिव सेंस पे लिया जाएगा। तो याद में रखना ये। और ऐसा कुछ वीकनेसेस पॉइंट्स मिल जाएगा, पर्टिकुलरली डोंट पॉइंट आउट योर वीकनेसेस। हाँ, वीकनेसेस सभी में होता है। तुम्हारे पास भी कुछ तुम्हारा भी कुछ वीकनेसेस है, हम लोगों के पास भी कुछ वीकनेसेस है, बट वी आर नॉट गोइंग टू हाईलाइट दैट इन दैट वे। वी वुड रेदर highlight a thing that is more often going in a diplomatic way। और क्रिटिसिज्म कैसे तुम हैंडल कर सकते हो, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स एक क्वेश्चन आया क्या, जैसे बोले थे कि फीडबैक कैसे तुम हैंडल कर सकते हो। क्रिटिसिज्म मीन्स टेक दैट एज अ फीडबैक। तो ऐसे कुछ बोल देना कि आई व्यू फीडबैक एज एन अपॉर्चुनिटी इम्प्रूव माई वर्क, आई केयरफुली एनालाइज। कोई सजेशन हम लोग ले सकते एंड अप्लाई देम इन रिवीजन। मीन्स ये भी दिखाना है कि हम फीडबैक तो ले रहे हैं, और वो जो सजेशन या फीडबैक है हम लोग कैसे वो काम पे डाल सकते, ये भी ध्यान में रखना है। तो ऐसा कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग कैसे क्रिटिसिज्म हैंडल कर सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है। पोर्टफोलियो रिलेटेड भी क्वेश्चन तो हम लोग बोल दिए कि वहां पे पोर्टफोलियो रिलेटेड भी क्वेश्चन पे अगर और एक दो क्वेश्चन ऐड करें तो ऐसा कर सकते हो कि व्हाट यू डू इम्प्रूव। मैंने ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो शेड्यूल है पोर्टफोलियो रिलेटेड, ऐसा भी हो सकते हैं कि अगर तुम सोच सकते हो कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके बारे में ही कि रोनिता ने वो गॉथिक का जो इंटीरियर हम लोगों को दिखाया। रोनिता ने एक स्पेसिफिक टाइम भी मेंशन किए, जब बोले कि इतना टाइम में हम वो क्रिएट कर सकते हैं। तो वो तब जाके एक क्वेश्चन तुमको रिवर्स एक क्वेश्चन आता है कि रोनिता तुमको हम इतना टाइम, अगर सोचो कि तुमको ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो तुम वो मॉडल पे क्या इम्प्रूव कर सकते हो। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जो बोल रहे हैं ना, एक जितना भी हो सके नोट कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा अगर इंटरव्यू पे जा रहे हो तो थोड़ा सा हेल्प पे आएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से ना और एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसा कुछ हम लोग आंसर नहीं दे कि हमारे अगर आंसर दिए और वो आंसर ही क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ हम लोग नहीं छोड़ेंगे उस जगह पे जाके। तो अगर छोड़ भी रहे तो उसका आंसर भी हम लोगों को पता चलना चाहिए। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि व्हाट वुड यू इम्प्रूव इफ गिवन मोर टाइम। मीन्स अगर ज्यादा टाइम दिए तो तुम क्या इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो तुम्हारे पास रहना चाहिए एक एक क्वेश्चंस। तो होपफुली थोड़ा सा हम एक्सप्लेन किए कि क्या क्या हमारे पास आता है। और अगर पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन हम लोगों के पास आए, सोच सकते हो कि तुमको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और ये क्वेश्चन आता है कि अगर मॉडलिंग टेक्सचरिंग के बारे में सोचो तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास डाल देता है कि योर मॉडल इज लुकिंग फ्लैट एंड अनरियलिस्टिक। सोच लो तुम्हारा मॉडल वैसे दिख नहीं रहा है। ऐसा सोच लो कि तुम्हारे मॉडल थोड़ा सा
फ्लैट और अनरियलिस्टिक दिख रहा है, तो तुमको क्या लगता है क्या मिसिंग है उसमें? तो उसमें ना थोड़ा सा डिटेल, ये ऐसा कुछ काम क्वेश्चन आ सकता है, तुम वहां पे आंसर रेडी रखना कि मॉडल का तू क्या क्या बेटर प्रोपोर्शन करना है, बेवल करना है, जो भी है, मटेरियल में वेरिएशन लेकर आना है, अप्रोप्रिएट टेक्सचर डालना है, लाइटिंग, बेटर लाइटिंग एंड शेडिंग। मीन्स तुमको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। में हो सकता है कि तुम्हारे पोर्टफोलियो में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो इंटरव्यूअर तुमको क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि तुम ये क्वेश्चन का आंसर ठीक ठाक दे पा रहे हो। सोच लो और एक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि योर मॉडल लुक्स वेरी डार्क इवन दो यू हैव एडेड अ लाइट, व्हाट वुड यू चेक? मीन्स ये प्रैक्टिकली लाइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है, अगर डार्क दिख रहे हो तो उसको मीन्स स्पेसिफिक होना है, इस तरफ उस तरफ नहीं बोलना है। तो अगर डार्क दिखा रहा है मीन्स उसको एक्सपोज करना है मॉडल को, मीन्स इंटेंसिटी और एक्सपोजर के लेके ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो उसमें स्पेसिफिक हो, दैट मीन्स इट इज लाइटिंग रिलेटेड क्वेश्चन। और ये सोच लो कि ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि योर टेक्सचर एज विजिबल सीम्स, हो ही सकता है, हाउ वुड यू फिक्स देम? मीन्स हम पहले से ही बोल रहे हैं ये हो सकता है कि तुम्हारे मॉडल या पोर्टफोलियो में ये सब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमको ये सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ऐसा कुछ एक स्टॉक बनाओ, ये क्वेश्चन का बेस बनाओ, वो क्वेश्चंस क्या क्वेश्चंस आ रहा है, मीन्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू डोंट हैव टू आंसर, यू कैन फाइंड मेनी आंसर फ्रॉम नेट ओनली। सो मेक अ, आई वुड सजेस्ट प्रॉपर एक क्वेश्चन बैंक बना लो कि इंटरव्यू पे जाने पे टाइम पे थोड़ा सा हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते। मीन्स ऐसा नहीं है कि तुम जान जाओगे कि क्या क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी तुम प्रिपेयर करके जा सकते हो। जब 20 क्वेश्चन तुम्हारे पास रेडी है, तुम्हारे पास हो सकता है कि 2 या 3 क्वेश्चंस कर रहे, तो वो तुम, आई होप यू आर रेडी फॉर आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। ऐसा भी हो सकता है कि टेक्सचर के बारे में पूछो तो वो ऐसा कुछ बोल रहा है कि तुम्हारा टेक्सचर थोड़ा सा स्ट्रेच दिखा रहा है, तो व्हाट कुड बी द रीजन? तो बोल देना कि यूवी लेआउट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो होपफुली आई हैव एक्सप्लेन, मीन्स एक लाइटिंग के बारे में ही बोले, एक टेक्सचरिंग के बारे में भी बोले कि कैसे आता है, और मॉडल का भी बारे में बोले, मॉडल का भी अगर टोपोलॉजी के बारे में अगर पूछे, रीटोपो के बारे में भी पूछ सकते, बहुत सारा कुछ स्कल्पटिंग के बारे में आ रहा है। अगर एआई का कुछ मॉडल के लेके क्वेश्चन रेडी रखना बस, एआई के मॉडल को लेके अगर तुम कैसे तुम्हारे काम पे हेल्प पे आएगा, तो ये भी बोल सकते हो कि तुम अगर एआई से कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वहाँ से प्री एक मॉडल वहाँ से डाउनलोड कर लो। प्री मॉडल मीन्स एक जैसे वो वहाँ पे तो वायरफ्रेम ठीक ठाक नहीं रहेगा, दैट मीन्स कार्ड फ्लो, यू हैव टू मैनेज द टोपोलॉजी, दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ प्रॉम्प्ट देके अगर मॉडल को जनरेट कर रहे हो, या कोई भी जनरेट, मीन्स हो सकता है कि वो जहाँ पे गए हो वो थोड़ा सा एआई को मॉडल लेके काम कर रहे हैं, तो वो मॉडल तो एआई का मॉडल लेके काम कर रहे हैं, मीन्स एआई का हेल्प ले रहे हैं, एआई से तो पूरा मॉडल नहीं बना रहे हैं, तो वो थोड़ा सा तो टोपोलॉजी का प्रॉब्लम हो जाएगा। दैट मीन्स वो मॉडल ले रहे हैं, बाद में उसको रीटोपो कर रहे हैं। तो वो वही एक्सप्लेन कर देना कि कैसे तुम एआई का मॉडल लेके तुम, अगर एआई का मॉडल तुम्हारे पास है तो तुम क्या काम कर सकते हो उसके ऊपर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो वही बोल देना कि कुछ मॉडल हम उसके लिए थोड़ा सा टाइम सेविंग हो जाएगा, एक बना रहे हो उसका प्रॉम्प्ट दे दिया, प्रॉम्प्ट से अगर मॉडल जनरेट हो गया, उसके ऊपर हम गए उसको थोड़ा सा रीटोपो किए, रीटोपो करके वो मॉडल का स्ट्रक्चर हम लोग वैसे निकल नहीं पा रहे थे, तो वो थोड़ा सा मॉडल का रिस्ट्रक्चर हम लोग को मिल गया, उसके ऊपर हम लोग रीटोपो कर लिए। तो यही बस क्वेश्चंस, पहले मॉक इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस है हम पूरा एक्सप्लेन किए, डू और डोंट्स का भी बहुत सारा कुछ एक्सप्लेन किए। तो प्रिपरेशन करो कि क्या है, और जैसे बोले कि एक पूरा सा स्टॉक रेडी रखो, एक क्वेश्चंस का अलग अलग करके रेडी रखो, एक मॉक इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर से रेडी रखो, डू और डोंट्स के बारे में एक देखो कि डू और डोंट्स क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, और टेक्निकल राउंड को थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओ, मीन्स टेक्निकल बोथ
बेस्ड ऑन योर पोर्टफोलियो एज वेल एज थोड़ा सा पोर्टफोलियो को छोड़ के भी थोड़ा सा क्वेश्चन रेडी रखो। पोर्टफोलियो को अगर कुछ है और इसके साथ साथ सीवी को भी ध्यान में रखो, सीवी को ठीक ठाक रखो। बहुत ज़्यादा कुछ इंफॉर्मेशन दे के सीवी को कॉन्जेस्टेड नहीं करना है। सीवी बी स्पेसिफिक, सीवी में प्रॉपर इंफॉर्मेशन है तो जो भी है प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, तो वो वहाँ पे क्रिएट करो। अगर सीवी का कुछ सैंपल अगर पहले से क्रिएट करके रखे हो तो अलग सा बात, अगर क्रिएट करना चाहते हो तो बहुत सारा कुछ कैनवा में भी हो कैनवा जैसा कुछ है तो वहाँ पे भी मिल सकता है। फोटोशॉप भी जानते हो, फोटोशॉप में अगर क्रिएट कर सकते हो। बहुत सारा कुछ कलर करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़रूरत ही नहीं है एकदम सा। वो अगर कोई भी प्रिंट आउट देके तुम कहाँ पे जहाँ पे वो छोड़ी लेके या सीवी अगर कोई भी भेज रहे, तुम जब इंटरव्यूअर के सामने वो तुम्हारा जो तुमने जो सीवी बनाया वो जब आएगा, मीन्स वो डाउनलोड करके लेकर आए, तो सोच सकते हो कि वो कलर प्रिंट आउट तो नहीं करके लेकर आएगा, वो ब्लैक एंड प्रिंट आउट ही नहीं करके लेकर आएगा सामने। तो मेक श्योर these are the things I am just highlighting. Maybe you are carrying a color printout. They are not going to carry a color printout. Means they are when you are they are taking an interview, they are going to sit in front of you with a black and white print or black and white whatever. It's just like that. तो ज़्यादा से ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बैकग्राउंड से स्पेसिफाई हो ऐसा कुछ टेक्स्ट और बैकग्राउंड को रखो। मीन्स अगर वाइट बैकग्राउंड भी है तो प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर अगर सीवी का भी कुछ प्रॉब्लम है तो सीवी का फॉर्मेट है, फैकल्टी है, फैकल्टी से भी पूछ सकते हो। और अगर प्लेसमेंट का बारे में अगर प्लेसमेंट का जगह है तो एक बार ये भी एक बार दिखा देते हैं कि एक बार स्क्रीन शेयर करके। होपफुली इट इज शेयर्ड। सी मूपल का जो प्लेसमेंट के बारे में अगर जा रहे हो, अगर कोई भी क्लास ऐसा कुछ क्लास का ज़रूरत है तो देख लेना। या हमारा भी जो वीडियो हम कर रहे हैं फिलहाल वो आ जाएगा 2-3 दिन में। अगर पहला भी कुछ अगर प्रिपरेशन लेके जाना है तो एक बार यहाँ पे जाओ, मूपल प्लेसमेंट पे यहाँ पे जाकर सर्च करो तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ इंटरव्यू सेशन, इंटरव्यू डू एंड डोंट्स ये सब मिल जाएगा। टेक्निकल एक्सपर्ट सेमिनार तो ये सब मिल जाएगा। यहाँ से जाके अगर वीडियो भी देखना है तो पहला वाला वीडियो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। मीन्स हम जस्ट दिखा दिया कि जहाँ पे हम लोग वो साक्षात वेब पे हम लोग वहाँ पे जो भी पहला वाला जो इंटरव्यू डू और डोंट्स है वहाँ पे है। तो अगर देखना चाहते हो एक बार रिविजिट कर लो, वहाँ पे जाके वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही था, आज एक सेशन था। होपफुली यू हैव लाइक्ड इट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं ये। ओके।